ABC company has entered into a contract with Salman Contractors for construction of office building. For construction of office building. The agreement was made on 1st March 2017. First March 2017, and the terms and conditions are given below. And terms and conditions are given below. Number one, total construction cost of building shall be rupees 150 million, shall be rupees 150 million, and it shall be completed on 30th June 2018, and it shall be completed on 30th June 2018. Number two, ABC company shall pay 10% advance at the time of signing the agreement. At the time of signing the agreement. सर ये लाइन दोबारा से रिपीट कर दें. Point 2. ABC company shall pay 10% advance at the time of signing the contract. Number three, %5 retention money shall also be deducted retention money shall also be deducted at the time of payment of each progress bill. At the time of payment of each progress bill. नंबर 4 पॉइंट लिखिए.
each progress bill shall be paid after 15 days from the date of bill. After 15 days from the date of bill. ठीक है, ये 4 पॉइंट के बाद नीचे आइएगा पैराग्राफ में और लिखिए the details of progress bills received as under. First July 2018, 30 million. First October 2018, 25 million. 31st December 2018, 40 million. 31st December 2018, 40 million. सर ये सेकंड वाले की अमाउंट क्या बोली थी आपने? 25. अच्छा, अब इससे Okay, नीचे आइएगा, ठीक हो गया, इससे नीचे आइएगा और लिखें डिटेल्स ऑफ फाइनेंसिंग आर गिवन बिलो. Detail of financing is given below. इसमें नंबर 1 लिखिए, as at start of the year, as at 1st January 2017, the company has following running finance balances. Company had following running finance balances. और इससे नीचे लिखें 25 million at a rate of 20%. 40 million at a rate of 23%. दोबारा बोल देता हूं, फाइनेंसिंग 25 million at a rate of 20%, 40 million at a rate of 23%. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, on 1st May 2017,
ABC company obtained a loan of rupees 40 million at 15%. At 15%. लोन की अमाउंट क्या बताइए? स्पेसिफिक है जनरल? Absolutely, ये specific होता है. 40 million at a rate of 15%. 40 million. Bank deducted 0.5%, यानी 0.5% as processing fee. सर ये दोबारा रिपीट कर दें. Bank deducted 0.5%. Bank deducted 0.5% as processing fee. से आगे लिखे, loan shall be repayable in 6, बल्कि 6 नहीं करें, in 8 equal biannual installment. Loan shall be repayable in 8 equal biannual installments along with interest. और आखिरी पॉइंट लिखिएगा, the work was stopped in the month of August 2017. सर ये रिपीट कर दें. जी दोबारा बोल देता हूं, आखिरी पॉइंट ये बोल रहा हूं. The work was stopped in the month of August 2017. And this period qualifies as suspension period as per IAS 23. अच्छा, एक पॉइंट जो छोटा सा और लिख लें, वो रह गया, वो भी लिख लें, फिर मुकम्मल हो जाएगा. आखिरी, द सरप्लस पॉइंट्स can be invested at 8% per annum.
at 8% per annum. अच्छा, अब ये एग्जाम्पल मैंने जो लिखवाई है, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट एग्जामिनर हमसे रिक्वायर कर सकता है वो सारी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए पहले नंबर पे आप सिर्फ एक रिक्वायरमेंट लिखिए, लेकिन रिक्वायरमेंट नंबर 1 जिसको मैं सॉल्व करने लगा हूं, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट। ओके, बिस्मिल्लाह। तो अब मैं इसको प्रॉपर क्वेश्चन को करूंगा। सबसे पहले तो वही टेबल बना लेते हैं। ऊपर लिखता हूं एबीसी कंपनी, टाइटल आ जाएगा, उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड, देन तीसरी लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017, रुपीस इन मिलियन। इसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी, वो चारों पहले लिखेंगे। सबसे पहले लोन प्रोसेसिंग फी। अच्छा, लोन प्रोसेसिंग फी को हम कैलकुलेट भी यहीं पे कर सकते हैं। हमने स्पेसिफिक लोन कितना लिया है क्वेश्चन के मुताबिक? वी हैव टेकन अ लोन ऑफ 40 मिलियन। 40 मिलियन, और इस पर 0.5% जो है वो हमारी फी डिडक्ट हुई है। तो 40 मिलियन का 0.5% लें, 0.2 मिलियन। 0.2 मिलियन। और इसको 3 डेसिमल तक मैं लेके जाऊंगा। 0.200 लगा दूंगा तो 3 डेसिमल हो जाएगा। फिर मैं लिखता हूं जी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, या स्पेसिफिक लोन लिख लें या बोरोइंग्स लिख लें। ऑब्वियसली ये वर्किंग बनाते जाएंगे और हम वर्किंग का रेफरेंस देते जाएंगे। फिर इसके बाद इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा, वो कैलकुलेट करूंगा। यकीनन ये 2 अमाउंट जो है इस कॉलम में लाऊंगा, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहां ले जाता हूं। और फिर फाइनली इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरोइंग। ये सारी अमाउंट कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगी वो यहां लाकर इसको प्लस कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ये पहले आपने एक पेज पे बनाना होता है, क्योंकि आंसर ये है, बाकी सब कुछ वर्किंग है। अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं जी वर्किंग 1 में, कि हम टेबल बनाते हैं। यहां ले आता हूं वर्किंग 1 फंड यूटिलाइजेशन टेबल। अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक हम चलते जाते हैं और इसको तरतीब देनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है इसमें कोई तरतीब नहीं है। यानी ये मुख्तलिफ चीज़ों को जिक्र किया है, लेकिन डेट वाइज लाना ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ के लिए अगर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने थोड़े से पॉइंट क्वेश्चन लिखवाते हुए नोट कर लिए थे। ज़रा इसकी तरफ आइएगा। शुरू में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कब हो रहा है? 1 मार्च 2017। आई थिंक यही डेट लिखवाई थी। यस सर, यही थी। ठीक है जी, 1 मार्च को किया, लेकिन आपने उसी दिन 10% पेमेंट की। तो यानी एक तो 1 मार्च को मैं पेमेंट करूंगा, ये मैं रफ में पहले लिखूंगा ताकि डेट वाइज हमारा आता जाए।
ये थोड़ा सा हिंट लिख रहा हूं ताकि मैं टेबल बनाते वक्त मुझे आसान हो। दिस इज रफ वर्क। ये एडवांस पेमेंट की, और उसके बाद 3 प्रोग्रेस बिल आए हैं, और प्रोग्रेस बिल के मुतालिक वो लिखता है जी कि 15 डेज के बाद पे करना है। अगर पहला बिल मेरा 1/7/18 को आ रहा है तो पहली पेमेंट करूंगा मैं 15/7/20। ये 18 को 17 कर दीजिएगा प्लीज, ये मेरा ख्याल है मैंने 18 लिखवा दी है, इसको 17 कर दीजिएगा। ये फर्स्ट बिल है। दूसरा बिल आ रहा है 1 दिसंबर 2018, सॉरी 1 अक्टूबर 2017, तो इसको मैं करूंगा 15 अक्टूबर 2017। और थर्ड बिल हमें मिल रहा है 31 दिसंबर 2017, इसकी पेमेंट होगी 15 जनवरी 2018 में। और मैंने सिर्फ वो लानी है, यहां पर पेमेंट हाईलाइट करनी है जो 31 दिसंबर 2017 तक होंगी। अगर आपने कोई पेमेंट इसके बाद की है वो अगले साल में जाएगी, इस साल में इसको नहीं लोगे तो इसको छोड़ दो, बस यही 2 पेमेंट है इस साल में। इससे नीचे आए तो उसने बताया कि ओपनिंग बैलेंस जो है जनरल बोरोइंग का ये है, वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 मई 2017 को आपने स्पेसिफिक लोन लिया है 1 मई को, और लोन के एग्रीमेंट के मुताबिक हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यानी इसकी जो इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट, वो 1 नवंबर 2017 को मैं पे करूंगा। इसके 6 मंथ काउंट कर लो, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। और इसके अलावा और कोई चीज नहीं है क्वेश्चन में, यही 5 वैल्यूज हैं। अब इसको डेट वाइज करना है। नंबर 1 तो ऑब्वियसली ये आएगी 1 मई, फिर 1 मार्च, फिर 1 मई, देन 15 जुलाई, 15 अक्टूबर और 1 नवंबर। ये 5 वैल्यूज आ रही हैं। अब इसको टेबल में लेकर आना है, तो पहले टेबल में हम उसी तरह डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, और उसके बाद स्पेसिफिक लोन और जनरल, और जितनी भी अमाउंट्स हैं वो हमारी रुपीज इन मिलियन है। ऊपर इसलिए मैं यहां लिख देता हूं रुपीज इन मिलियन। जी, तो टेबल के मुताबिक 1 मार्च से मैं स्टार्ट करता हूं। 1 मार्च को मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूं। एडवांस पेमेंट है 10%। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो टोटल बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 150 मिलियन का था। इस 150 मिलियन का 10% मैं अगर पे करता हूं तो मैं 15 मिलियन पे कर रहा हूं। अब ये 15 मिलियन की अमाउंट जो है वो आप कहां लिखो, कहां से पे करोगे, बोलिए सर जनरल बोरोइंग से। जनरल से, क्योंकि अभी स्पेसिफिक बोरोइंग तो ली ही नहीं है, तो ये 15 मिलियन जो है वो जनरल बोरोइंग में आ गया। ये पेमेंट यहां से कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट जो है ये नंबर 1 के बाद नंबर 2 आपने स्पेसिफिक लोन लिया है। 1 मई 2017 को लोन लिया है। अच्छा, लोन आपने जो एज पर क्वेश्चन लिया है वो 40 मिलियन है, लेकिन उसमें 0.5% जो है वो आपके लोन प्रोसेसिंग फी डिडक्ट कर ली बैंक ने। इट मीन्स कि आपको जो कैश मिला है वो 0.2 मिलियन डिडक्ट होने के बाद मिला। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो फंड्स आए हैं वो 39.8 मिलियन के हैं, यानी 40 मिलियन माइनस 0.2 मिलियन। तो मेरे पास फंड्स आए 39.8 मिलियन के। ये दूसरी ट्रांजैक्शन भी हो गई। थर्ड ट्रांजैक्शन फर्स्ट प्रोग्रेस बिल। अच्छा, अब फर्स्ट प्रोग्रेस बिल जब मैं पे करता हूं, पहले तो इसकी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 15/7/17 को फर्स्ट प्रोग्रेस बिल। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल कितनी अमाउंट का है एज पर क्वेश्चन, कितना है जी बोलिएगा? 30 मिलियन को। अच्छा, ये बिल मुझे फर्स्ट को मिला है, लेकिन हमने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ा था कि द पेमेंट शैल बी मेड
इन 15 डेज। तो इसका मतलब 15 तारीख को आप पेमेंट कर रहे हो, यहां पेमेंट डेट लानी है। अच्छा, अब 40 मिलियन का आपका पहला बिल है, 40 नहीं 30 मिलियन का। 30 का। अच्छा, अब चूंकि आप 10% एडवांस दे चुके हो, वो डिडक्ट करोगे आप पेमेंट 30 मिलियन की नहीं करोगे। पेमेंट आप एडवांस चूंकि दे चुके हो 10%, वो एडजस्ट होगा। फिर क्वेश्चन के मुताबिक 5% रिटेंशन मनी आप डिडक्ट करोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो पेमेंट करोगे, बिल 30 मिलियन का आया है लेकिन आप उसका 85% पे करोगे। 10% एडवांस डिडक्ट किया और 5% आपने रिटेंशन मनी डिडक्ट की। इट मींस 15% आपकी अमाउंट डिडक्ट हो गई, तो बाकी 25.5% रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 85% पे, तो 25.5 मिलियन आता है। बताइए ये 25.5 मिलियन की पेमेंट मैं कहां से करूं? स्पेसिफिक सर। स्पेसिफिक से, क्योंकि स्पेसिफिक मेरे पास लोन पड़ा हुआ है 39.8, तो 25.500 की मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है जी। अब मेरे पास जो बैलेंस रह गया वो 14.300। नंबर 4 पे देखें तो सेकंड प्रोग्रेस बिल आ रहा है जो 15th 10 यानी अक्टूबर 2017 को मैं पे कर रहा हूं सेकंड बिल। और सेकंड बिल की क्या अमाउंट थी? 25 सर। 25 मिलियन। तो 25 मिलियन में से भी 10% एडवांस डिडक्ट करोगे, 5% रिटेंशन मनी डिडक्ट करोगे और 85% आप पेमेंट कर दोगे। इसका 85% लें, 21.25। 21.25। अब ये 21.25 की पेमेंट कहां से करेंगे हम? सर पहले स्पेसिफिक से करेंगे और बाकी जनरल से। जी, ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने स्पेसिफिक को देनी है, लेकिन जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो स्पेसिफिक लोन से ज्यादा की अमाउंट है। इट मींस 14.30 मैं माइनस पे करूंगा स्पेसिफिक से, और जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो कितना बनेगा जी आपका? 6.95। यस सर। 6.95 की जो पेमेंट है वो जनरल बोरोइंग से करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे वही आ रहा है 21.25। ठीक है जी। अब सिर्फ रह गया आखिरी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पे कर रहे हो 1 नवंबर को। ये लोन इंस्टॉलमेंट जो स्पेसिफिक लोन लिया हुआ है वो आप रीपे कर रहे हो। वर्डिंग को फॉलो कीजिएगा। वर्डिंग के मुताबिक मैंने आपको लिखवाया था जहां लोन लिया था स्पेसिफिक का, द लोन शैल बी रीपेएबल इन 8 equal biannual installments, 8 equal biannual installments including interest। यानी इट मींस कि जब आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे तो कितनी इंस्टॉलमेंट देनी वापस करना है? आपने लोन लिया था 40 मिलियन का, अगर मैं इसको 8 इंस्टॉलमेंट में पे करता हूं तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? 5 मिलियन। 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5। लेकिन आपने 5 मिलियन पे नहीं करना, प्लस इंटरेस्ट जो इन 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है वो भी साथ पे करोगे ना आप। अब वो इंटरेस्ट किस तरह है? 40 मिलियन का 15% इंटू 6/12, ये बनेगा 40 का 15% अगर आप लो तो 6 इंटू 6/12 तो 3 मिलियन। चेक कर लेना कैलकुलेशन। यस सर ठीक है। इसका मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, टोटल इंस्टॉलमेंट जो मैं पे करूंगा वो 8 मिलियन की है। 5 मिलियन लोन वापस कर रहा हूं, 3 मिलियन इंटरेस्ट वापस कर रहा हूं, तो 8 मिलियन की आप पेमेंट कहां से करूं? सर जनरल से। जनरल से। ये यहां से मैंने माइनस कर दिया। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गई, यानी टेबल कंप्लीट हो गई। अब जनरल में जो पेमेंट है वो 3 पेमेंट फिर आ गई, 3 पेमेंट्स आप कर रहे हैं।
ये पहला सर, स्टेप ये है कि आपने फंड यूटिलाइजेशन टेबल बनानी है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। सर लोन सर ये इंस्टॉलमेंट लोन बता दीजिए। इंस्टॉलमेंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। लोन का तो देखो ना, मैंने पहले कहा है वर्डिंग को फॉलो करना है। वर्डिंग के मुताबिक जो लोन लिया आप 8 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करोगे। लोन आपका 40 मिलियन है, 40 मिलियन को अगर 8 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करता हूं तो पर इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन बनती है, जो ये मैंने कैलकुलेट की है। ये प्रिंसिपल पेमेंट है। प्रिंसिपल पेमेंट वो होती है जो लोन वापस कर रहे हो, लेकिन लोन के साथ प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना है। उसके साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है अलोंग विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है वो आपने, चूंकि 40 मिलियन जो है वो आपने 6 मंथ पहले लोन लिया था, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट भी तो निकालो ना, वो भी पे करोगे बैंक को। 5 मिलियन लोन वाला अमाउंट प्रिंसिपल पेमेंट प्लस 3 मिलियन इंटरेस्ट, तो आप 8 मिलियन की पेमेंट करो। ठीक है जी। आइएगा अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, वर्किंग नंबर 2। ये एक लाइन में निकलती है, मैंने उसी को फॉलो करना जो मैंने आपको फार्मूले बना के दिए। मैंने लिखा अमाउंट ऑफ लोन, बोरोइंग कितनी की है 40 मिलियन, इनटू इंटरेस्ट रेट 15%, इनटू, अब मैंने मंथ्स काउंट करने हैं। मंथ के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था कि डेट ऑफ एग्रीमेंट जो कि 1 मार्च है, और डेट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग जो कि 1 मई है, विच एवर ऑफ दीज इज लेटर। तो यानी लेटर जो है वो 1 मई 2017 है। यहां से शुरू करूंगा और कहां तक जाऊंगा। रिपोर्टिंग डेट है मेरी 31 दिसंबर 2017, और सेसेशन डेट जो है वो आई थिंक क्वेश्चन में हमने क्या लिखी थी 30 जून 2018। तो विच एवर ऑफ दीज टू अमाउंट इज अर्लियर, टू डेट इज अर्लियर, तो जो अर्लियर है वो 31 दिसंबर 2017 है। इनमें से जो अर्लियर, ये लेटर और ये अर्लियर, तो 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक मंथ काउंट करो। मई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं जी? बोलिए। 8 महीने, 8 सर। 8 मंथ। और क्या इस पीरियड में कोई सस्पेंशन पीरियड फॉल करता है? यस सर, अगस्त। यस हाँ सर। जी, सर हमने है पढ़ा था अगस्त। मंथ ऑफ अगस्त जो है वो आपका सस्पेंशन पीरियड है, और अगस्त इस पीरियड में फॉल कर रहा है, इसलिए -1 डिवाइडेड बाय 12 ये हम पढ़ के आए हैं। लेकिन ये जिस तरह मैंने कैलकुलेट की है ना, ये गलत है। ये मैंने खुद किया, कैलकुलेट किया आपको समझाने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। बेसिक ये गलत कहां से हुआ है, कहां से रॉन्ग हुआ है? हुआ ये है, मैंने ये बिल्कुल ठीक लिया है, 1 मई से स्टार्ट करना है, 31 दिसंबर तक जाना है। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि 1 नवंबर को आप एक लोन की एक इंस्टॉलमेंट वापस कर चुके हो। तो अब ये 40 मिलियन का लोन जो है आपका, वो दिसंबर तक नहीं था, यानी इसमें से 5 मिलियन आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर चुके हो। लिहाजा इसकी कैलकुलेशन को 2 हिस्सों में लाऊंगा। अब देखिएगा, इसको मैं पूरा समझा रहा हूं आपको कैसे करना है। 1 मई से लेकर मैं पहले 1 नवंबर तक आऊंगा, जिस डेट को लोन रीपे किया है, फिर 1 नवंबर से दोबारा स्टार्ट करूंगा और 31 दिसंबर तक आऊंगा। ये प्रिंसिपल याद रखना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट क्वेश्चन में देगा, तो जिस डेट को रीपेमेंट कर रहे हो उस डेट के बाद लोन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा। मैंने अब भी वही लिया है, स्टार्ट लिया है मई से, एंड किया है दिसंबर में, फर्क कोई नहीं आया, सिर्फ इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया। 1 मई 2017 से लेकर 1 नवंबर 2017 तक मेरा लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40 मिलियन थी, लेकिन 1 नवंबर को मैंने 5 मिलियन पे कर दिया। 8 नहीं, पे 8 ही किया है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी है।
लोन की अमाउंट जो वापस की है वो 5 मिलियन है, यानी इसका मतलब 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लोन जो है स्पेसिफिक लोन आउटस्टैंडिंग 35 मिलियन, इसलिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब आप उसी तरह कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई 15%, मल्टीप्लाई 15%। अब इसके मंथ काउंट करो तो 6 मंथ बनते हैं यकीनन, लेकिन इस पीरियड में क्या कोई सस्पेंशन पीरियड है? नो। यस सर। यस सर, अगस्त। तो -1 डिवाइडेड बाय 12 होगा। सर ये अगस्त 7 का मंथ्स month- बन रहे हैं। अगस्त का मंथ यहां फॉल कर रहा है, और ये जो पीरियड है नवंबर और दिसंबर, ये 2 मंथ बनते हैं। क्या इसमें कोई सस्पेंशन पीरियड है? नो सर। नहीं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करें, 40 इंटू 15% इंटू 5/12, 2.5 3 सर 2.5 2.5 सर। 2.5 और 35 इंटू 15% इंटू 2/12, 0.875। 875। इसको प्लस कर लो तो 3.375। दिस इज द फर्स्ट आंसर, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। सर वो 7 मंथ्स नहीं बनेंगे ऊपर? 7 कैसे बनेंगे? काउंट करो। सर वो मई से नवंबर तक। नवंबर 1 है ना? सर वो काउंट नहीं होगा? नहीं नहीं, 1 नवंबर कैसे काउंट होगा यार? अक्टूबर तक काउंट करोगे। अगर आप यहां नवंबर काउंट कर रहे हो फिर यहां पे भी करोगे, फिर तो डबल हो गया। टोटल तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया, पहले 8 मंथ बन रहे थे, अब भी 8 ही बन रहे हैं। 6 + 2। ओके जी, अब आगे चलिए। अगली चीज निकालनी है मैंने, इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम सिर्फ स्पेसिफिक बोरोइंग पे निकलती है जो उसके सरप्लस फंड्स हैं। तो इसकी वर्किंग के लिए मैं पहले सरप्लस फंड देखता हूं कहां कहां थे। देखो मैंने 1 मई को लोन लिया, 1 मई को 1 मई को लोन लिया और फर्स्ट पेमेंट कर रहे हो 15/7/2017 को, 15 जुलाई 2017 को। तो ये वाले फंड 15/7/2017 तक मेरे सरप्लस रहे। और कितने सरप्लस फंड थे? 39.8। इस डेट को आपने पेमेंट की 25.5 मिलियन। पेमेंट करने के बाद सरप्लस फंड आ गए 14.3, जो कि 15 अक्टूबर तक आपके रहे। तो लिहाजा अब मैं इसको दूसरे हिस्से में लेके जाऊंगा, 15/7/17 से लेकर 15/10/2017 तक। इसका जो आपका स्पेसिफिक सरप्लस फंड है वो 14.3 है, ये 14.3 मिलियन। अच्छा, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कैपिटलाइजेशन रेट से, जो हमने कैलकुलेट नहीं किया था। अच्छा, ये इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट रेट क्वेश्चन के अंदर 8% है, ये 8% लिया। अब इसके मंथ काउंट करो, इसके मंथ है 1 मई से 15 जुलाई तक। जरा काउंट करके बताओ कितने मंथ बनते हैं? 2.5 सर 2 मंथ्स। 2.5 सर। 0.5 मंथ्स। ये 15 जुलाई है, आधा महीना जुलाई का शामिल करोगे और आगे चलिएगा। अच्छा, इसमें देखो कि इस पीरियड में कोई सस्पेंशन पीरियड तो नहीं है? अगस्त का है सर। नो सर। अगस्त का है तो अगस्त इसमें में तो नहीं सर। फॉल कर रहा ना, इसमें फॉल नहीं कर रहा। नो सर। फिर 15/7 से 15/10 तक कितने मंथ बनते हैं? सर ये जो 8% इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम है, तो ये हम 2 महीनों पे लगा रहे हैं, तो इसको 12 से डिवाइड नहीं करेंगे और 2 महीनों का इंटरेस्ट रेट नहीं निकालेंगे कि कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? तो इसलिए तो डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं भाई। अच्छा
एनुअल है ना आपका, इंटरेस्ट रेट एनुअल है, ठीक है ठीक है। इसलिए तो डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं ताकि एक मंथ में कन्वर्ट हो जाए ना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उस मंथ से। ओके, ये बनते हैं 3 मंथ्स, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। लेकिन इन 3 मंथ में अगस्त का मंथ भी इंक्लूड है और लिहाजा 1 महीना मेरा सस्पेंशन पीरियड आ गया, वो माइनस करो डिवाइडेड बाय 12। अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए 39.8 इंटू 8% इंटू 2.5 बाई 12 कितनी अमाउंट आएगी? 0.0663 0.0663 बस ठीक है, 3 डेसिमल पूरे हो गए। ये गलत कैलकुलेशन है सर, यही आता है। सर 0.663 मैं खुद कैलकुलेट करूं, पता नहीं मेरे दिल को नहीं लग रही है। सर यही है। सर 39.8 इंटू 8% इंटू सर 6.6 2.5 डिवाइडेड बाय 12, ये बनता है 0.663। आपने लिखवाया 0.0663। अल्लाह के बंदो, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कुछ कुछ होना चाहिए आपको कि यार ये समथिंग इज रॉन्ग। मतलब आप कैलकुलेट करते हो, मुझे ऐसे ही बस क्लिक करता है कि ये नहीं, ये अमाउंट कुछ मजे की नहीं लग रही, तो ये होना चाहिए। कैलकुलेटर पे आप एक आधा जीरो कम ज्यादा करोगे तो फर्क आएगा। दूसरी कैलकुलेशन करो, 14.3 इंटू 8% इंटू 2/12 0.191 आवाज नहीं आई आपकी, कोई और बोल देगा, नहीं आ रही। 0.190 0.190 190। अब इसको ऐड कर लें, $853। ये जो 0.853 आई है अमाउंट, वो इस अमाउंट में से माइनस करूंगा तो 3.375 में से 0.853 माइनस किया तो क्या आंसर आया? 2.522 522। ठीक हो गया जी, 522। अब रह गया सिर्फ आखिरी जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन रेट, क्योंकि हमारे पास 2 बोरोइंग्स हैं और दोनों शुरू से हैं। यानी ड्यूरिंग द ईयर कोई नई जनरल बोरोइंग नहीं की। पहला जो लोन लिया हुआ है, पहला जो बैलेंस आपके पास आ रहा है वो कितना है जी क्वेश्चन के मुताबिक? फर्स्ट जनरल बोरोइंग का जो बैलेंस दिया हुआ है रनिंग फाइनेंस का, वो 25 मिलियन है एट अ रेट ऑफ 20%। 20%, विच इज इक्वल टू 5। और दूसरी बोरोइंग कितनी मिलियन है, कितने परसेंट पर? 40 मिलियन 23% पर। 40 मिलियन 23% पर 9.2 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल बोरोइंग 65 मिलियन है, उसका इंटरेस्ट बनेगा 14.200। तो कैपिटलाइजेशन रेट बन गया 14.2 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100। बोलिए। 21.84। 84, एक डेसिमल और बोलो, 3 डेसिमल लो, ज्यादा बेहतर है। 21.84 6
अगर 846 था और आप राउंडिंग कर रहे हो तो ये एक्चुअली बनता है 85%। राउंडिंग नहीं सही कर रहे आप लोग। 6 के बाद क्या है? सर 1। 1, ठीक है, फिर सही है। जब भी इसे जहां तक आपने राउंडिंग करनी होती है उससे अगली अमाउंट अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसमें 1 ऐड कर दिया करें। जैसे अगर आपने 2 डेसिमल तक बोला था तो 21.84 गलत तस्वर होगा, आपने 21.85% लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे आगे 6 है। लेकिन 3 डेसिमल ले रहा हूं तो इसके बाद 1 है तो इट्स ओके, 21.846। अब वर्किंग 5 कोई मुश्किल नहीं होती। वर्किंग 5 में हमने करना क्या है, हमने लेना है फार्मूले के मुताबिक डेट यानी अमाउंट पेड, जो अमाउंट पे की है फ्रॉम जनरल बोरिंग वो इस कॉलम से हमें मिल रही है, 3 पेमेंट्स की हैं। मैंने स्टार्ट यहीं से करना है, एंड सबको करना है 31 दिसंबर को, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 31 दिसंबर अर्लियर है, तो इसलिए पहली जो है वो 1 मई 2017 को पेमेंट की अप टू 31 दिसंबर 2017 में इसकी कैलकुलेशन करूंगा। कितनी पेमेंट की है? 15 मिलियन इनटू कैपिटलाइजेशन रेट 21.846% इनटू कितने मंथ बनते हैं जी? मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 months। 10 मंथ, और इसमें एक मंथ अगस्त का भी शामिल है, वो जो कि सस्पेंशन पीरियड है, इसको लेस कर दो। अब बताओ क्या आंसर आया? 15 इंटू 21.846% इंटू 9/12। 2.457। भाई ये पॉइंट में नहीं आएगा, क्या बोल रहे हो? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक करो। 2.45 2.4576। 458, ठीक है। उसके बाद अगली जो पेमेंट की है ये वाली, ये की है 15 अक्टूबर को। 15, 10, 17 से लेकर 31 दिसंबर तक ही आऊंगा, और ये पेमेंट है 6.95 इंटू 21.846%। अब इसके मंथ काउंट करो, 15 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर कितने मंथ बनते हैं? 2.5। 2.5 मंथ्स, और इनमें कोई सस्पेंशन पीरियड नहीं है क्योंकि अगस्त का मंथ इससे पहले है। तो अब कैलकुलेट कीजिएगा, 6.95 इंटू 21.846 इंटू 2.5/12। 0.316 316। और आखिरी आइएगा, आखिरी पेमेंट जो की है वो 1 नवंबर को की है आपने। 1 नवंबर 17 से लेकर 31 दिसंबर तक ये पेमेंट है 8 मिलियन की। 8 इंटू 21.846% इंटू, ये सिर्फ 2 मंथ बनते हैं, 2/12, और इसमें भी सस्पेंशन पीरियड नहीं है। 0.291 299। अब इसको प्लस कर लो तीनों को, सर 291 291। आई थिंक 3.065, ये 3.065 आ गई अमाउंट। फाइनली इसको टोटल कर लो, 5.87787। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 हमारी टोटल अमाउंट जो कैपिटलाइज होगी फाइनेंस कॉस्ट वो होगी 5.787। 5.787। ठीक है।
ठीक है जी। अब इसमें कोई क्वेश्चन यहां तक पूछना हो तो पूछिए। रिक्वायरमेंट नंबर 2 लिखिएगा। पास्ट जर्नल एंट्रीज, ये मैं बहुत रिक्वायरमेंट लिखवा रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। हाँ, ये याद रखिए सारी एक क्वेश्चन में नहीं होंगी, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं हर जो पेपर में आ चुका है या आ सकता है वो सारा मैं करवाऊंगा यहां पर। तो सेकंड रिक्वायरमेंट एग्जामिनर इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो इंशाल्लाह इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट अभी टाइम नहीं है, मुकम्मल नहीं होगा, इसको हम कल करेंगे, जर्नल एंट्रीज इसकी कल करेंगे, ठीक है जी।